A very good afternoon. We are representing all Arunachal Pradesh Contractual Nursing Officer Association, and today we have decided for a press conference because we have exhausted ourselves running from table to table, offices to offices. We want the government and the concerned authorities to listen to our prayers and grievances. We are contractual nursing officers working under NHM for the last 7 years in various capacities like nurse tutor, bedside nursing, in administration, HWO. We are huge in numbers, and we are serving equally like our counterparts, regular nursing officers, but we are paid very low and irregularly. So we have always moved for a post creation of file which was started in the year of 2018, and it came to till finance department, but the then secretary of finance, sir Mr. AC Verma, he returned the file or sent back the file to DHS asking for resubmission in the next financial year, citing the reason for being your economic crisis that was happening because of corona pandemic. So accordingly we have submitted the file this year to your principal secretary and chief secretary, but there is no positive actions or any kind of assurances from their side. So we have decided to go for this press conference and make government aware that we are running after the file and this is the status of our file. So we are requesting government to please create at least 530 regular nursing officer posts. And why that is because, sir, there is acute shortage of nurses. Actually, the actual requirement that is calculated using ratio, patient ratio or the bed and hospital ratio, it is 1,800 nurses are required. 1,806 to be specific, it is 1,806 nursing officers are required, but the whole Arunachal is running only with 599 nurses, which is, it is not enough. So we are requesting government to create more nursing posts. Upon that, it is like it was last 2014 only the post was created, and it is a long gap of 7 years. There is never a post creation for nurses. That is the other reason that we are demanding. The other thing is that the nature of nursing is not a seasonal or temporary. It is an essential service. If other departments like your police department or your fire department, they are essential service and they are recruited on regular basis, then why nursing jobs are neglected? Is it because it's a female dominated field? That is our question. If the neighboring states like Assam and Manipur, they have created regular posts, they have mass regularization of their NHM staff, then why our Arunachal government is lagging behind? So that is one other reason that should be addressed. And anything more you want to add? Recruitment का डिमांड कर रहे हैं ना आप रेगुलराइजेशन. It is the post creation. We are asking government to create. No, we are not asking them to recruit. We are asking them to create regular post for nursing. They are not creating jobs. You are getting my point. No? They are not creating jobs. We are asking them to create jobs. And whenever we are going and asking them for post creation, they are giving us excuses of financial crisis. So our question is, हम कब तक bear nurses ही क्यों financial crisis को bear करता रहेगा? और बाकी डिपार्टमेंट में तो पोस्ट क्रिएशन हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? फाइनेंशियल क्राइसिस और स्कार्सिटी नहीं, गवर्नमेंट का बजट फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है. गवर्नमेंट का फाइनेंशियल फंड नहीं है. हाँ, गवर्नमेंट खुद बोलता है कि हमारा फंड नहीं है, इसलिए हम इतना पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है ना? वो गवर्नमेंट बता, इसलिए उन लोग पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है और उन लोग NHM को यूज़ कर रहे हैं. NHM इज सेंट्रली फंडेड स्कीम. सो हाउ लॉन्ग कितना दिन हो गया कि आप लोग रियलाइज किया कि शॉर्टेज हो रहा है? सर ये 2018 से 2018 से तो फाइल स्टार्ट किया है और हम बहुत समय तक रुका है. 2014 से 2018 तक हमने रुका है विदाउट मूविंग, ओपनिंग अ फाइल और विदाउट रनिंग आफ्टर द फाइल, यही सोच के कि गवर्नमेंट विल इनिशिएट ऑन इज ओन, बिकॉज उसको पता है डिपार्टमेंट DHS हैज़ बीन सेंडिंग प्रपोजल टू द गवर्नमेंट, लेकिन उन लोग बार बार उसको फाइल को घुमा रहा है और वापस डिपार्टमेंट लेवल में भेज रहा है. तो मैम होल अरुणाचल में अभी शॉर्टेज, नर्सेज का शॉर्टेज हो रहा है, तो अभी तक आप लोग कैसे मैनेज करके आए हैं?
सर हमारा यही तो है 599 सिर्फ रेगुलर है और बाकी जितना अरुणाचल में काम कर रहा है पीएचई बोलो सब सेंटर बोलो आपका सब जगह में आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एनएचएम स्टाफ ही मिलेगा। तो उसी से गवर्नमेंट चला रहा है जिसको बहुत कम पैसा दिया जाता है और इरेगुलर पेमेंट दिया जाता है। सर आपका क्वेश्चन में एक आंसर देगा। जैसे क्राइसिस की वजह से लास्ट टाइम जब कोरोना चल रहा था इतना सीवियर क्राइसिस हो गया था और गवर्नमेंट इतना इमीडिएटली नर्सेस रिक्रूट तक भी नहीं कर पा रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोग का नर्सिंग स्कूल से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को उन लोगों ने मतलब ऑन टेम्पोरेरी बेसिस फॉर हैंडलिंग कोरोना सिचुएशन उन लोगों ने स्टूडेंट तक को यूज़ किया था। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि इतना सीवियर क्राइसिस है कि आप स्टूडेंट को यूज़ करना पड़ रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट को ना। तो अगर इतना सीवियर क्राइसिस है, आपको इतना ज़्यादा चाहिए, तो वाई यू आर बीइंग रिलेक्टेंट इन रिक्रूटिंग नर्सेस ना। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से बोलेगा एनएचएम तो एक सेंट्रल स्कीम है, वो तो कोई प्रोग्राम के लिए। कल को सडनली सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा कि नहीं हमको ये स्कीम और नहीं चलाना है, आई टेक बैक ऑल माई नर्सेस, तो गवर्नमेंट का क्या हो 99 क्या वो पूरा एंटायर स्टेट चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। तो एक सडन स्ट्रोक खाने से अच्छा बेटर है कि आप फेस वाइज मैनर धीरे धीरे अपना स्टाफ को स्ट्रेंथन करते रहो। कल के अगर एनएचएम बंद भी हो जाता है तो यू विल हैव योर ओन स्टाफ टू रन विद ना। तो हम लोग गवर्नमेंट को वही बोलना चाहते हैं कि डोंट टोटली डिपेंड ऑन द सेंट्रल एम्प्लॉयज़ ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ये स्कीम का एम्प्लॉयज़ पे आप डिपेंड मत कीजिए। आप अपना मैन पावर बढ़ाइए ना, एटलीस्ट ज़्यादा तो नहीं। आउट ऑफ हम लोग 1800 रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा है, DHS ने भेजा है, बट वी आर आस्किंग ओनली फॉर 530 पोस्ट ना। उतना तो सर दे सकता है क्योंकि पेमा खंडू सर ने लुमला में, आलो में, यहाँ चिंपू जब कोविड सेंटर हॉस्पिटल इनोग्रेट कर रहा था वहाँ पे भी सर ने इतना अपने मुंह से एश्योरेंस दिया है कि NHM नर्सेस विल बी रेगुलराइज्ड ऑन फेस वाइज मैनर। तो फेस 1 में आप 530 कर दीजिए, देन रेस्ट हम लोग जैसे अभी तक मैनेज करते आ रहे विद शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, वैसे हम लोग धीरे धीरे मैनेज करते रहेंगे। तब तक आप ईयरली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंडक्ट करते रहिए ना। तो फिलहाल तो स्टार्ट विथ जस्ट आप 530 पोस्ट थोड़ा रेगुलर पोस्ट क्रिएट कर दीजिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये एनएचएम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करा था जी, एनएचएम ये एक्चुअली नेशनल हेल्थ मिशन होता है ना। तो ये आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो इससे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रहता है कि जो स्टेट आपका हेल्थ के सेक्टर में पुअरली परफॉर्म कर रहा है या फिर हेल्थ में से आपका एक मतलब एक फील्ड कमी रह गया, से वैक्सीन देने में कोई स्टाफ का कमी रह गया या कोई एक सपोज बहुत सारा मम्मियों का डेथ हो रहा है या कोई बेबी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में जहीं अगर शॉर्टफॉल कहीं स्टाफ का हो रहा है तो वो स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूजली एनएचएम को रिक्रूट किया जाता है। तो एनएचएम इज जस्ट एन सप्लीमेंट, ये कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कमी को जस्ट आपको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, यूजिंग एनएचएम कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स एज सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंट ना। यहाँ पूरा हॉस्पिटल पूरा ये आपका CHC PHC एंड कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेज के थ्रू चल रहा है ना। दैट्स नॉट फेयर ना कि मतलब आपको जहाँ सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए था वो आप सब्स्टिट्यूट बना के यूज़ कर रहे हो ना। तो यही था प्रॉब्लम। थैंक यू।